Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will take up another topic, and that is covalent bonds. So, my dear students, the bond formed by sharing of electrons between two atoms is known as covalent bond. Bond formed by sharing of electrons between two atoms is known as covalent bond. उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. यानी ये वो बॉन्ड है. This is the bond formed between two atoms by sharing of electrons. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन. If we take up the example of chlorine, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, we all know it is 17, 2, 8 and 7. This is this electronic configuration. So in order to attain the nearest noble gas configuration, यानी क्लोरीन का जो nearest noble gas है, that is argon. Argon is the nearest noble gas of chlorine. So in order to attain the electronic configuration of argon, chlorine needs one electron. इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिससे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट attained by this chlorine, it should be similar to that of the argon, the nearest noble gas configuration. So ये क्या करता है? ये दूसरे क्लोरीन के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन शेयर. तो इसका हमारे पास, अगर हम इसका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स को बाय मीन्स ऑफ डॉट दिखाते हैं. और एक बात का एक और हम ख्याल रखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, we does not take those electrons into consideration which are in the inner shells के electrons के बारे में हम मतलब यहाँ नहीं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं विच आर इन द वैलेंस शेल. तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7. तो दूसरा क्लोरीन एटम आता है, तो दे शेयर दिस वन इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, तो फॉर्मिंग ए बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. ये जो शेयर्ड पेयर है, दिस इज द शेयर्ड पेयर. ये दिस बिलोंग्स टू दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन एज वेल. इस तरह हम ये दिखा सकते हैं. दिस इज दिस क्लोरीन एंड ये इस क्लोरीन का जो क्लोरीन एटम. इफ वी टेक द इलेक्ट्रॉन काउंट, अगर हम यहाँ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. 2, 2, 4, 2, 6. That means this chlorine atom completes its octet. So this bond, इसको हम ऐसे, तो this is the covalent bond. These are three lone pairs. इनको हम lone pairs कहते हैं. Lone pairs of electrons. So this is our covalent bond. So the bond formed between two atoms by sharing of electrons is known as covalent bond. When two atoms share one electron each, जब दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे,
The bond formed is the single covalent bond। अभी जो हमने मिसाल दी है क्लोरीन की, क्लोरीन both atoms share one electron, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ने शेयर किया। तो दिस बॉन्ड इन विच द बॉन्ड in which the two atoms share the bond formed, the bond formed, when two atoms, the bond formed when two atoms share one electron each is known as सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। हम यहाँ एक और एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, मीथेन में हम C इज द सेंट्रल एटम, तो दिस इज ये कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, this is the valence electron of hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, and this is hydrogen, so that it forms the their these two atoms share one electron each, so there is a single bond, single covalent bond, this is another single covalent bond, this is another single covalent bond, this is another single covalent bond, this is सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के। तो व्हाट इज नाउ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज a bond formed between two atoms by sharing of one electron from each atom, by sharing of one electron from the each atom. Now when the two atoms share two electrons each, जब दो एटम्स आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, तो द बॉन्ड फॉर्म्ड इन सच केस इज known as double covalent bond। when two atoms share two electrons each, comma, the bond formed is known as double कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन। दिस इज द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की वैलेंसी वी ऑल नो इट इज 6, 2, 2, 4 and 2, 6। There is another oxygen 2, 2, 4, 2, 6। ये इस like this is our oxygen atom, so that each oxygen atom contributes 2 electrons for bond formation, so this bond is known as double covalent bond। इसको हम double covalent bond कहते हैं। We have another example C2H4। C2H4 is another example। यहाँ पर कार्बन, तो it is like this, double bond C, this is single covalent bond, single covalent bond, single covalent bond, single covalent, this is double covalent bond। So when two atoms share two electrons each, now there are cases in which an atom contributes 3 electrons for sharing purposes। In that case, the bond formed is known as triple covalent bond। When the two atoms share 3 electrons, 3 electrons each, the bond
formed is known as triple covalent bond. एग्जाम्पल है हमारे पास CN की cyanide. CN is an example. CN. We have C. This is the valency of C. तो इसकी valency सॉरी CN में नहीं है, वो CN में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. We have the triple bond in N2. Sorry, N2. In N2, each nitrogen atom contributes 3 electrons for sharing. This is the valency of one nitrogen atom. This is the valency of. So there is this nitrogen and this nitrogen, they contribute 3 electrons each to form triple covalent bond. तो यहाँ इस तरह हम दिखाते हैं. This is our triple covalent bond. Triple covalent bond. Then we have Lewis representation of simple molecules. So it can be expanded or it can be described in these following steps. Number first step is that total number of electrons are obtained by adding the valence electrons of combined atoms. तो जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, they are obtained by adding the valence electrons of combined atoms. यानी पहले हमें देखना है कि combined atoms कौन कौन से हैं, कौन कौन से atoms जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उनको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दूसरा जो स्टेप हमें याद रखना है इसमें लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल में जो हमारा दूसरा स्टेप होगा, दैट इज इफ वी आर going to represent the molecule which is anion or which is cation. if अगर कोई anion molecule होगा that is negatively charged, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना प्लस करना है जितना हमारे पास उस उस स्पीशीज का चार्ज होगा. अगर नेगेटिव में टू नेगेटिव चार्जेस होंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे. पहले हमें काउंट करना है व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पहले उनको प्लस करना है, उसके बाद उस टू नेगेटिव चार्ज के एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्लस करने हैं. इट इज फॉर एनायंस. अगर कोई कैटायन होगा जिसका हमें लेविस रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, अगर कोई कैटायन होगा तो लाइकवाइज इसी तरह हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे, उनमें से हमें उतना सब्ट्रैक्ट करना है जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होगा. एग्जाम्पल मैं यहाँ दे सकता हूँ. एक एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन. दिस इज अमोनियम आयन. इसका अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो पहले हमें कंट्रीब्यूटिंग एटम्स कौन कौन सा आएगा, नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन. नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5.
4 हाइड्रोजन की और हो गए +4, 5 और 4 हो गए 9, टोटल है 9 इलेक्ट्रॉन्स। मगर 9 इलेक्ट्रॉन्स में एक सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज इट हैज़ 1 पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। यह हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। दिस वाज द स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 3 में हमें एक और बात का ख्याल रखना है। वी हैव टू assign that atom which is the least electronegative। उस एटम को हमें असाइन करना है एज सेंट्रल एटम यानी हमें याद रखना है कि पहले सेंट्रल एटम हमको आइडेंटिफाई करना है। लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें पहले सेंट्रल एटम को रिकॉग्नाइज करना है। तो हमेशा उस एटम को सेंट्रल एटम माना जाता है विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है NF3 में। अगर हमारे पास NF3 मॉलिक्यूल होगा तो वी विल टेक नाइट्रोजन एज द सेंट्रल एटम बिकॉज नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो आफ्टर असाइनिंग सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल्स को सिंगल बॉन्ड असाइन करने हैं। उसके बाद अगर हमें और कोई इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उनको एकोमोडेट करने के लिए या तो हमें किसी जगह मल्टीपल बॉन्ड्स डालने हैं, ऐड करने हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, या हमें उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए हमें एज लोन पेयर भी उनको शो करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स का लेविस रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। Keeping these steps into consideration, if we have to show or we have to write the structure of water molecule का अगर हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना हो तो how can we represent this? The formula of molecule is number first we are going to represent the Lewis structure of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एज सिंपल एज दैट। पहले वी हैव टू ऐड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं हमारे पास? इस हाइड्रोजन का एक और दूसरे हाइड्रोजन का हो गए 2। तो हम इस तरह रख सकते हैं हाइड्रोजन दिस so this is H, this is the single covalent bond. This is the Lewis structure or Lewis representation. Lewis representation of हाइड्रोजन। तो इसके साथ साथ हम ऑक्सीजन का भी यहाँ लिख सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू ऐड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। 1 ऑक्सीजन एटम हैज 8 no 6 valence electrons. Yes, we have 6 electrons, so 6 plus 6 हो गए 12। this is 2 2 2। तो यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन 2 2 and 2। अब इसके भी 2 बचते हैं, इसके भी 2 बचते हैं। दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ताकि एक और बात का भी यहाँ हमें ख्याल रखना पड़ता है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर शेयर्ड बिटवीन दीज ऑक्सीजन एटम्स। That means these 4 electrons belong to this oxygen as well as this। तो अगर हम इस ऑक्सीजन का यहाँ पर तो 2 लोन पेयर्स और ओनली पेयर, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने 12 electrons because this oxygen 1 oxygen it is electronic configuration 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 है।
तो टू ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 6 और 6 हो गया 12 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऑक्टेट, इस ऑप्शन का ऑक्टेट पूरा हुआ है कि नहीं। these four belongs to this as well as this 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका लेविस रिप्रेजेंटेशन होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, ओ डबल बॉन्ड ओ, साथ में हम इसको दो लोन पेयर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको टू लोन पेयर्स, दिस इज द लेविस रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास इसका फिलहाल हम नहीं करेंगे। वी हैव NF3, वी हैव NF3, NF3 का हम देखेंगे। NF3, NF3 भी हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के हैं 5, नाइट्रोजन के 5 और फ्लोरीन के 7, 7 3 जा 21, 21 और 5 कितने हो गए 26, 26 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज आवर नाइट्रोजन, this is our nitrogen, and these are, this is the valency, this is the 5 electrons of this nitrogen। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन आता है 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर एक और फ्लोरीन आएगा 2 2 4 2 6 1 7। तो इसका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस रिप्रेजेंटेशन जो बनता है दैट इज लाइक दिस। नाइट्रोजन यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर दूसरा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर तीसरा सिंगल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर। तो यहाँ पर हमें फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। तो इस फ्लोरीन के 3 लोन पेयर्स 1 2 and 3, 1 2 3 लोन पेयर्स। So this is the Lewis representation of nitrogen trifluoride, nitrogen trifluoride। So dear students, I think this is enough for today. We will meet tomorrow inshallah. Have a nice time ahead.